دائما میں صفے انبیاء بولے سارے نبی. اتحاد گروپ بنائے ٹینچ باٹا اسٹاف سے لے کر مصطفی چوک تک. جو آج کی سب سے خوبصورت بات مجھے اس تقریب میں لگی ہے وہ یہ مصطفی چوک ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے متفقہ طور پر ایک مثال قائم کی اور بلا مقابلہ ان عہدیداروں کو منتخب کیا. یہ بڑی کنٹونمنٹ بورڈ کے متعلقہ جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس آپ آئیں، جو بھی متعلقہ کام ہوگا انشاءاللہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. سب سے پہلے میں جناب یعقوب چشتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی تھا گرانیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دن رات شانہ بشانہ تاجروں کی خدمت کریں گے. اس کے رسول ہیں. میں 54 سال سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کنج باٹا میں چراغاں کرا رہا ہوں، اور میری ایک کوشش ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوں تاکہ اگلے سال ہم جشن چراغاں پورے کنج باٹا میں کرتے ہوئے جشن عید میلاد النبی کا. بڑے اچھے جاندار لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ٹینچ باٹا کے اندر یہ ایک تاجروں کے اندر نئی روح پھونکی جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ تمام تاجر مل کر حل کریں گے. بڑی مہربانی آپ. لیکن اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے بزرگوں کے سائے تلے بات کرنے میں واقعی کام پہ ٹانگ جاتی ہے. حصہ ہیں، اور میں ان سے امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ تاجروں کے مکمل تحفظ کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے دن رات محنت کریں گے. میرے لیے کرو اللہ کرے تو سارا بازار کٹھا ہو جائے تو زوری بنا کے انسان دیکھنی بڑی گل نہیں، پھر آپشن فساد پا چڑے. اس ویلے بھی نہ کروڑاں دینے سن، فوجی بھی آئے سن نہیں کروڑاں دینے. پھر بیچنا زامن دیتے لیگر کہ دیکھئے زامن ہو سن زامنہ نہیں گا بھی کسی نہیں سنی انہیں بڑا زور رہا تھا. یونٹس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ سی او صاحب کو یہ موو کریں گے. اس پہ حاج صاحب آپ کو بریف کر دیں. سادات آئے ہوئے بولنا شریف سے نسبت ہے. دادا مرشد حضرت کی میرے نشان بابو جی حضور میرے مرشد پاک، آپ تو ماں باپ کا شکریہ. جو ہمارے بھائی جناب نیاز صاحب ہیں، آج اسٹیج کے ذریعے تقریباً جو میں اپنے پاس ہے لارا رشید خان صاحب کو 15 جو سٹریٹ لائٹس ہیں، جو بڑی لائٹیں ہیں بازار کے لیے، وہ میں لارا رشید احمد خان صاحب کو دوں گا، اور نیاز بھائی آپ نے مل کے یہ مین بلاک میں لگوا دینی ہے. کو شجاعت، رسالت، طاقت، علم، آگاہی سب کچھ دیا تھا. دوسری چیز ہے دین. آج کی حلف برداری کی اس تقریب میں موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید جہاز حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوں گے. آپ کا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد، اس شخص کا دین نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کرم بخاری. ناظرین گرامی، ایشیا کا سب سے بڑا بازار ٹینچ باٹا، اس کا الیکشن بازار کا ہوا. بازار میں الیکشن میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی، جو پینل جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ یہ ان کے جو عہدیداران ہیں موجود ہیں. سب سے پہلے فنانس سیکٹری ہیں میرے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ میرا نام بابر خان ہے. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا شاہین چینل کا اور آپ کا، جنہوں نے آپ نے ہم سے انٹرویو لیا. سب سے پہلے بات یہ جی کہ اب پہلے بھی یونین رہ چکی ہے یہاں پہ، تو میں ایز اے فائنانس سیکرٹری انشاءاللہ اپنے
जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दूँगा ऐसे अंदाज से। तो जहाँ से फंडिंग के हवाले से बात है कि हमारा जो टेंच है ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार भी है, और ये हमारा जो यूनिट जो 5 है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। फंडिंग के हवाले से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो फंडिंग भी करते हैं। मैं एक छोटा सा एक वाक़या कोट करूँगा यहाँ पे कि हमारा एक यहाँ पे दोस्त था, उसको एक इशू बन गया, वो बीमार था, उसको मतलब सेंसिटिव उसके केस बन गया उसके साथ, तो वो हॉस्पिटल में था। हमने 1 घंटे के अंदर इस यूनिट के अंदर, मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस 1 घंटे के अंदर हमने 54,000 रुपये इकट्ठा किया इस यूनिट से, और ये 54,000 बाज़ाब्ता तौर पर हमने उनको पहुँचाया। उससे हमें उनसे दुआएँ भी मिली और हमें भी खुशी हुई। तो वो जब वो 54,000 रुपया या 50,000 रुपया लगा, तो वो उससे वो पेशेंट था वो ठीक हो गया, हमें खुशी हुई। तो मैं इस चैनल की तवज्जो से ये भी कहूँगा कि इंशाल्लाह हम मैं एज़ अ फाइनेंस सेक्रेटरी कोशिश करूँगा कि जो भी फंडिंग हो इंशाल्लाह उसको अकाउंटेबिलिटी भी उसमें हम इंशाल्लाह कोई भी करना चाहे मैं हाज़िर हूँ, और मैं उसकी रखूँगा, और इंशाल्लाह जहाँ पे फ़ंड की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे फ़ंड लगाएंगे। और जहाँ पे मिसाल कुछ टूटी-फूटी जगह है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। अपने जो सीनियर हमारे सदर साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मैं इनके साथ मशावरत के बाद, और जहाँ पे मैं महसूस करूँगा ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ये हम उधर वो पैसा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। इत्तेहाद खिदमत ग्रुप के चीफ ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ हैं, आइए करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? सर नवीद जावेद जी। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, बड़ी खुशी हुई जी। इंशाल्लाह जी जो ओहदा दिया गया है इस हवाले से बात करूँगा कि इंशाल्लाह पहले जो हमारा इलेक्शन रहा है, यहाँ पे सिस्टम रहा है, वो इतना पुरअमन नहीं रहा। हमारी कोशिश है कि उससे बढ़ चढ़ के सबके साथ कोऑपरेट करके आगे सब भाइयों को मिलजुल के चलाएँ कि हमारे एक इत्तेहाद जो बना है ना, इत्तेहाद को कायम रखा जाए। और इत्तेहाद जो है ना, ये इंशाल्लाह बाकी भी यूनिट के साथ मिलजुल के कोऑपरेट करेंगे, और इंशाल्लाह अपना एक नाम जो हमने एक रखा गया है, और इंशाल्लाह इसका एक एतमाद कायम रखेंगे। और इंशाल्लाह सब भाई माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटेबल है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सब भाइयों को साथ मिलजुल के चला के तो एक अपना एक नाम कायम रखूँ, कि एक नाम याद रखें। क्योंकि माशाल्लाह कैंच में कम अज़ कम 35-40 साल हो गए हमारे आबा अजदाद से चलते आ रहे हैं हम। सब दुकानदार माशाल्लाह जानने वाले भी हैं, मिलजुल के सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हमारी कोशिश है कि इन सब के साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट भी करेंगे, और इंशाल्लाह इनको एक यकजां करके इनको चलाएँगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। मेरे साथ इत्तेहाद खिदमत ग्रुप के मीडिया कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, जाहिद साहब, आइए इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जो पिछला ग्रुप था ना, अच्छा कारकर्दगी की वजह से हाजी साहब के ग्रुप को ज्वाइन किया है, और मैं इंशाल्लाह इस जितनी भी जो हमारी कोई खामी है या कोई ऐसी सिलसिला है उसको हाईलाइट करूँगा, और मेरा ख्याल है कि इसको बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और हाजी साहब पे हमें पूरा एतमाद है, और हाजी साहब से मिलकर हम लोग जो भी हमारे पास खामियाँ हैं, बाज़ार की हैं, कुछ भी हैं, वो हम इंशाल्लाह मीडिया में लाएँगे और हाजी साहब को भी बताएँगे, और इंशाल्लाह इनका भरपूर साथ देंगे। जी मेरे साथ मौजूद हैं इत्तेहाद खिदमत ग्रुप के जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब अज़हर महमूद फारूकी साहब, आइए करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ शाहीन चैनल का, कि जिन्होंने जो है ना हमें ये मदऊ किया और आज हमारा एक इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं इस हवाले से आप तमाम और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बाज़ार के मसाइल का ताल्लुक़ है, चूँकि मैं ख़ुद भी एक दुकानदार हूँ, मैं भी यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ और बाज़ार में बैठा हूँ, यहाँ बाज़ार वालों के मसाइल से भी आगाह हूँ। यहाँ के जो दीगर मामलात हैं उनको भी अंदाज़े हसन जानता हूँ। तो मैं तो चूँकि एज़ ए जनरल सेक्रेटरी सारा काम मैं समझता हूँ कि मेरा है, और मैंने किस तरीके से इनको चलाना है और किस तरीके से सेटअप को बनाना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हर दुकानदार हमसे मुतमईन हो, और जो हमारे दुकानदार हैं इनसे जो है ना अवाम भी मुतमईन हो, हमारी वजह से कोई परेशान न हो, यानी कि राहगीर हज़रात भी परेशान न हो, दुकानदार भी जो है ना वो अपना मामला ठीक रखें, ताकि उनकी जो है ना दुकानदारी बेहतर हो,
जब वो आवाम के साथ ठीक रहेंगे तो उनका कारोबार भी बेहतर होगा, और जहाँ तक हमारे मुतालिक जो उनके मसाइल हैं वो पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह जो जिस अदारे से मुंसलिक का मसला होगा हम कोशिश करेंगे उस अदारे में वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके पास जाएँ, वहाँ उनके साथ टेबल टैक करके तो उनके मामलात को बांदाज़ एहसन उन्हें हम पूरा करवाएँ। और बेहतर प्लानिंग ये है कि बाज़ार हमारा खूबसूरत नज़र आए, हमारा साफ़ सुथरा बाज़ार हो, हमारे जो ये खंभों की तारों का जो जाल बिछे हुए हैं उनको हम इंतज़ामिया के पास जाके उनसे कहें कि उसका कोई सदेबाब करें, सफाई का प्रॉपर एहतमाम हो, जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है वहाँ पानी का इंतज़ाम हो, जो हमारे सीवरेज के मसाइल हैं, बारिश हो तो सारा पानी रोड पे आ जाता है, इस तरह के मसाइल जो कैंटोनमेंट बोर्ड से मुतालिक के मसाइल हैं वो हम जो है ना हल करवाएँ, ताकि यहाँ पे जो है ना हमारा बाज़ार एक मॉडल बाज़ार बन सके। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पहले हम अपने दुकानदारों के पास अभी भी जो है ना हमारा यही प्लान बना है कि आज इस तकरीब के बाद भी हम एक दफ़ा जाएंगे और इखलाकी तौर पे कोशिश यही है कि वैसे तो यह है कि लोगों को खुद भी पता है कि कस्टमर से कैसे डील करना है, कि कोई ऐसा नहीं है उसे पता है उसने दुकानदारी करनी है कि मैं अगर किसी गाहक के साथ बदतमीज़ी करूँगा तो वो मेरे साथ दोबारा वो मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी बात है जो हम तक पहुँचती है राहगीरों के हवाले से, कस्टमर्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम उस दुकानदार के पास जाएंगे, उससे कहेंगे यार तूने यहाँ पे ज़्यादती की है और उसका अज़ाला किया जाएगा इंशाल्लाह। फौरी तौर पर हमारा ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे सदर साहब भी बैठेंगे, मैं भी रहूँगा इंशाल्लाह, हमारे बाकी लोग भी बैठा करेंगे अपने अपने टाइमिंग में, तो जो चीज़ हमारे पास पहुँचेगी वो इंशाल्लाह जो है ना उसका सदबाब होगा। जी आपका नाम? हाजी मोहम्मद याकूब। सबसे पहले शाहीन न्यूज़ और उसकी टीम की तरफ से इनको बिला मुकाबला मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले शाहीन न्यूज़ का मैं अथा दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा किया। बाज़ार के हवाले से ये फ़र्स्ट टाइम जो है बाज़ार की सफाई का बड़ा इशू है। कंटोनमेंट बोर्ड सफाई करते हैं लेकिन टाइम जो है टाइमिंग उनकी नहीं है। सफाई के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह फ़र्स्ट टाइम जब बच्चियाँ कॉलेज जाने से पहले अगर वो सफाई करके जाएँ तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि नजायज़ जावज़ात जो हैं हमारे दुकानदारों की वजह से कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। उस हवाले से भी कंटोनमेंट बोर्ड से हम मुशावरत करेंगे कि जहाँ तक ईज़ी हो सका दुकानदार के भी इज़्ज़त व नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है हमने, और कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से भी वो एक अदारा है, उसके साथ बैठ के मुशावरत करके ऐसा कोई हल निकालेंगे जो ताजरान बरादरी के लिए बेहतर हो। आज हमारे हल्फ़बरदारी थी, उस सिलसिले में जनाब हमने सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब तशरीफ़ लाए थे हमारे उस हल्फ़बरदारी के लिए। बकाया कोई सियासी, समाजी, मजहबी लोग भी बड़े तशरीफ़ लाए जिनमें मलक मंसूर साहब MBA और नूरानी साहब थे, राजा साहब थे, शाह साहब थे, मुफ्ती लियाकत साहब थे, रशीद ख़ान साहब थे, काउंसलर जो कैंट बोर्ड हैं। तो ये है कि उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, प्यार फरमाया। फिर उस कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से भी चंद ज़फ़र इकबाल साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने जो अंजुमन ताजरान का ये बिला मुकाबला इलेक्शन हुए उनके की बात की है। तो जो बाज़ार के ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए जो आसानियाँ हो सकती हैं वो उन्होंने की हैं बयान कि हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। आपके जो दुकानदार हैं उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। और मलक मंसूर साहब ने तो एक अनाउंस भी किया, ऐलान भी किया, वो जो लाइट्स के ये रोड की जो लाइट्स हैं उनको नए लगाई जाएँ। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी है उनकी, अल्लाह उनको इज़्ज़तों से नवाज़े। तो बकाया ये है कि अफ़ज़ल फ़ारूकी साहब थे मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी की सीट पे, बाबर भाई हैं और भाई भी हैं साथ, एक पैनल है। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम ये ताजर बरादरी है इसके लिए इसके हक़ूक़ के लिए लड़ें, कोशिश करें
اور ان کا جو حق ہے وہ اداروں سے دلوائیں. ہم واپس سے بھی ملیں گے، کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی مشاورت کریں گے، اور بھی جو ادارے انتظامیہ ہیں ان سے مشاورت کریں گے. مشاورت مل بیٹھ کے ہم ایک ساتھ چلیں گے تاجروں کے حقوق کے لیے. ہمارا یہ ہے کہ یہ مصطفی چوک سے لے کے آخری اسٹاپ تک بہت کم واقعات ہوئے ہیں ایسے جو کسٹمر سے دکاندار جو ہے اس کا کچھ کلاش ہو گئی ہو. ادروائز یہاں پہ کوئی اس قسم کا کیس نہیں آیا، لیکن ہم دکانداروں سے مل کے انہیں ریکویسٹ کریں کہ جو گاہک جو ہے اللہ کی آپ کے طرف روزی کا وسیلہ ہے، آپ اس سے جو ہے پیار محبت سے بات کریں، اور ریٹ کا جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا آپ مینیج کریں کہ ریٹ مطلب کم سے کم اگر جتنی آپ کی وہ ہے ریشو ہے اس کے مطابق آپ کر کے تو کسٹمر کو آپ. میں تاجر برادری سے یہی کہوں گا کہ کنٹ بورڈ کے حوالے سے، وابطہ کے حوالے سے اور انتظامیہ کے حوالے سے وہ اتنا کریں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں. ٹھیک ہے جی، کنٹ بورڈ کے حوالے سے اپنی حدود میں رہیں. وہ واپڈا کے حوالے سے کوئی ان کا ایشو بنتا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں، انشاءاللہ کریں گے. میں چاہوں گا کہ اتحاد خدمت گروپ جو بنا ہے وہ دکانداروں کی خدمت کے لیے ہے، اور میں شکر گزار ہوں تمام تاجروں کا، دکانداروں کا، جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اعتماد کیا، میں انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ پورا اتروں.